Good morning, everyone. Now, once again, today we will discuss on the chapters standard 10th subject science, that is light reflection and reflection. Everyone know it is very important chapters for examination point of view. Now today again we will discuss about this topic and next topic. जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि लाइट फिज़िक्स में लाइट चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमने इसके पीछे दो वीडियो इस पे हमने डिपेंड देखा। तो फर्स्ट जो वीडियो हमने देखा वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अबाउट लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द about lights and rays. Now today we will discuss about the topic reflection of light. Now हम आज जो टॉपिक देखने वाले हैं that is known as reflection of light. How the light can be reflect. So now that is the first reflection of light. The process of light travel from one medium to another when light fall on a surface. Now, the process of light travel from one medium to another when light fall on a surface. Now, one define, we are also be write that the process of bending of light, or another define bending of light when light, the process of bending of light from one medium to another means bending of light from one medium to another. Bending of light from one medium to another, जब कोई रेस ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ अगर फॉल करता है, दैट इज ऑल्सो बी नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ द प्रोसेस ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करता है, मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. द प्रोसेस यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑल्सो बी राइट दैट the process of bending of light from travel from one medium to another. If we will write or not be right, both are necessary. Then the process of bending light travel from one medium to another when light fall on a surface. Yeah, another define bending of light from one medium to another. These are known as the refraction of light. Now we will take a surface. Any rays of light we will take them P, Q. When any rays of light which is fall bend, or what will happen to bend a rays of light, and now it is a point of normal. Now that is incidence ray, reflected ray and the point. Now the process of bending light
ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस। तो जैसे ये लाइट फॉल कर रहा है यहाँ पे सरफेस पे, जैसे ये रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद ये रेज ऑफ लाइट बैंड हो जाता है ना, एंड द बैंडिंग लाइट, देन ये लाइट सीधे बैंड होके कहाँ जाती है, ये नीचे की तरफ, यानी कि फ्रॉम जस्ट लाइक ये मीडियम हो गया रेयर एंड दैट इज denser. First one is rare, second one is denser. First one is rare medium and second one is denser medium. So when rays, incident rays fall on any particular surface, so that is known as reflected ray and that is known as incidence ray. IR means that is known as incidence ray and that is reflected rays. और ये पॉइंट हो गया नॉर्मल एंड दैट इज नॉर्मल बी ऑलवेज बी अ perpendiculars and it is the value of normal will be a 90 degree. So now it is a point normal, incident ray, reflected rays. Now the angle between the normal and incidence ray, is known as angle of incidence, and the angle of between the reflected rays and the normal, that is known as angle of incidence and angle of refraction. Now that is the defined, and that is the reflection of light, means the process of bending of light travel from one medium, that is known as medium 1, and that is medium 2. When light travel from first medium to another medium, travel from one medium to another when light fall on a surface, and these light when fall on a surface, that is the whole structure. Now next topic is Snell law. Snell's law. What is Snell's law and how we will describe about the Snell's law? Snell's law, how it is be defined about Snell's law. स्नेल्स लॉ को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, काफ़ी क्वेरी इसमें होती है कि स्नेल्स लॉ, अब हमने ये टॉपिक को फिर से अगेन इसलिए लिया क्योंकि इसके बिल्कुल रेलिवेंट टॉपिक होती है स्नेल्स लॉ, है, तो दैट्स वाई हमने इसको यहाँ पे सेम टॉपिक लिया। समझ, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबको समझ में आ गया होगा कि एक रेज ऑफ लाइट है जो एक सरफेस पे फॉल कर रहा है, और ये लाइट सरफेस पे फॉल करने के बाद ये रे ऑफ लाइट बेंड हो जाता है, ये रे ऑफ लाइट बेंड हो जाता है और यहाँ पे एक नॉर्मल का क्रिएशन रहता है, और ये नॉर्मल का क्रिएशन होने के बाद जो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच एक एंगल फॉर्म होता है जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्लेक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम क्या देखते हैं, सेम डायग्राम अगर हमने इसको बढ़ा के लिया, स्नेल्स लॉ में एक ही चीज़ डिफरेंस होती है कि जिस तरह से हम इसको जस्ट लाइक हमने फिर से यहाँ पे फिर से प्लेन सरफेस ले ली, अगेन वी विल टेक द प्लेन सरफेस एंड नाउ when rays of light fall, the rays of light bending and the normal can be create, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, चलो यहाँ पे हमने P, Q, इंसिडेंस रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल क्रिएट कर लिया। तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है कि जिस तरह से हम इसको शिफ्ट करेंगे, मीन्स यहाँ पे लिया तो ऐसा हो गया, फिर अगेन वी विल टेक रिफ्लेक्टेड रेज, फिर यहाँ पे डिफरेंट आ गया, मीन्स ओवरऑल ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि जैसे जैसे हमारा स्नेल्स लॉ में क्या होता है कि अगर हमने रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे होगा तो यहाँ हो गया, अगर हम यहाँ पे सेम ये रेज ले लें तो हमने यहाँ पे लाया तो फिर थोड़ा सा ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और यहाँ पे इसका नॉर्मल का क्रिएशन हो गया। तो स्नेल्स लॉ में ये फाइंड आउट किया गया, स्नेल्स लॉ के अंदर ये फाइंड आउट किया गया कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको यहाँ पे स्नेल्स लॉ में फाइंड आउट किया गया कि अगर आप की इंसिडेंस रे चेंज हो रही है तो इंसिडेंस रे की
ही पिक्चर में ही कि ये रिफ्लेक्टेड रेज भी चेंज होगा। मीन्स अगर इंसिडेंस रे यहाँ पे तो यहाँ हो गया तो थोड़ा सा ये, फिर यहाँ पे लाओगे तो जस्ट लाइक हम वी विल टेक द एग्जांपल अनदर्स आई इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रेज I1 I2 I3 I4 R4। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एवरी सिचुएशन इन एवरी कंडीशन, जो भी कंडीशन हो, ये यहाँ से एक ही चीज़ यहाँ पे बाहर आ रही है कि जितने भी आप रेज ऑफ लाइट को यहाँ पे ट्रेवल करोगे, जहाँ से भी ट्रेवल करोगे यहाँ से, तो एवरी कंडीशन में अगर आप इंसिडेंस रे को चेंज करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दिखेगा, है ना। इट इज नॉट बी कंपल्सरी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सेम है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही होगा, यानी कि एवरी कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होता हुआ दिखेगा आपको। तो ये स्नेल्स आपने इन्होंने ये चीज़ प्रूव किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप चेंज कर रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली इसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। फिर अनदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले लो तो भी उसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। थर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे तो उसके एंगल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो स्नेल्स आपने यही प्रूव करके अपने को दिया कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, और हमेशा जो डेंसर होता है यानी कि ये नीचे वाले मीडियम को हम ऊपर लिखते हैं, तो ये साइन मीन्स ये रिफ्लेक्टेड को हो गया, और ये साइन आई ये ऊपर वाले को लिखते हैं हम। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें को अपने एक ही चीज़ देखना होगा कि साइन आई साइन आर कांस्टेंट। तो स्नेल्स लॉ ये प्रूव किया कि किसी भी तरह से अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है और आप अगर इंसिडेंस रे को चेंज कर रहे हो, तो इंसिडेंस रे के चेंज करने की वजह से आपका रिफ्लेक्टेड रेज पे भी इफेक्ट दिखेगा और उसके रिस्पेक्ट में ही वो चेंजेस आपको दिखेगी, अदरवाइज चेंजेस नहीं दिखेगा, चेंजेस दिखेगी जैसा सेम। तो ये स्नेल्स लॉ होता है कि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट। अब यहाँ पे कोई मीडियम ले लो, एयर ले लो, ग्लास ले लो, है ना। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे ले लिया एयर ले लिया, फिर यहाँ पे ग्लास ले ली, फिर हमने ग्लास ले ली, है ना। तो एयर ले लिया, ग्लास ले लिया, और यहाँ पे जैसे ही कोई रेज ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल होने के बाद ये क्या हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, ये इंसिडेंस रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गया, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अगर हम लोग इसको राइट डाउन करना हो तो कैसे लिखते हैं, साइन आई तो हो गई, है ना, साइन आई जी अपॉन साइन आर ए, है ना। तो इस तरह से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, यानी कि ग्लास यानी कि ये वाले मीडियम को हम ऊपर लिखते हैं और एयर को नीचे लिखते हैं। तो स्नेल्स लॉ में ओवरऑल यही डिफाइन किया गया है कि अगर आप इंसिडेंस रे को चेंज करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड रेज भी चेंज होता हुआ दिखेगा। मीन्स पहला आई था आर, I1 तो R2 I1 R1 भी हो गया, I3 R3 I4 R4। तो ये डाटा से आपने क्या फाइंड आउट किया कि एवरी कंडीशन में, एवरी रिस्पेक्ट सिचुएशंस में आपका रिफ्लेक्टेड और ये दोनों चेंज होता था। तो साइन आई साइन आर कांस्टेंट, हमेशा साइन आई और साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसके बेस पे नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा, इसके सेम एज टॉपिक होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल वगैरह आस्क किए जाते हैं, और एक न्यूमेरिकल जो होता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के रेलिवेंट होता है, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आप अगर कोई भी अदर CBSE और ICSE में हो तो वहाँ से एक न्यूमेरिकल एवरी टाइम्स 2010 से देखा गया है कि एवरी ईयर 1 न्यूमेरिकल वहाँ से आस्क किए जाते हैं जो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डियर स्टूडेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।